And one is waiting for me. Where's Dushyant now? Hi, Dushyant. How are you? That's Parul. और विशाल is here. अच्छा, what do you want my phone for this? What do you want? Excuse me. Studio से आ गए। I think it's fine, just leave it. फोटो करते हैं क्या? Photos लेना है? जी 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 विजुअली कर लेते थोड़ा ठीक है, yeah, then I'm giving you my this. You wanna just feel free to my account? ठीक है. You figure it out. Huh? And just put it on flight mode. पीछे आ जाओ अच्छा, figure it out. Put it on silent. And stay somewhere wherever you feel. Yeah, I'm right And there, you have but the mini tripod. Huh? You set up I'll your take the tripod. live. राम, इसको चार्जिंग पे लगा के रखो. अनुज हेल्प करना ना यार. You've tried it, man. You've tried playing stuff. Everything's okay. You're gonna operate it, no? So go on. You're starting. You okay? So this is gonna be here. This is okay? हाँ. फ्रेम इज ओके एवरीवन. नहीं नहीं वो बैठ रहे हैं उधर. सिट निशा. माइक्स. How will I ये sound? यहाँ पे साउंड का इशू एक बार देख लेना. ठीक है. हाँ हाँ. चेक चेक चेक. टीचर से समथिंग. Hi, this is Nisha Raval. Check audio 1 2 3 check. Yeah. ऑल्सो ओके. I think I better stand. यू थिंक सो. लेट इट बी. This is okay for audio, everyone. ये वाले I हैं prefer it on the कैमरास. right, but it's too ऑडियो आ far. रहा है. ऑडियो 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 हियर. मेरे को कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करना. हाँ, just maybe just compress it. Maybe because I think I'll be more comfortable if this is on my right. ऐसे आ देन यू कैन सिट ऑन. Then I can, yeah, then I can sit. 1 2 3 सब ओके क्या? चलिए we are opening the press conference now. Are we ready everyone? It's on silent. It's on. चलिए ready? एवरीवन साइलेंस Rolling? So I'm वेट rolling. So we announce the press conference open. Nisha, we request you to begin and pour your heart out, which you have been holding on for such a long time. Thank you. Thanks, Parul. So these ones are very difficult, you know. हमारी मुलाकात अक्सर प्रेस से होती है जब हम कोई कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं या वी आर कमिंग आउट एंड सेलिब्रेटिंग समथिंग. But these ones are really difficult, and especially for me because I've not really been one of those controversial celebrities, and here my life is become controversial now. But thank you everybody for coming in. मुझे सिर्फ ये बोलना है, this is going to be short. I can't say short and sweet. There's nothing sweet about this, but all I'm going to say is that आप गलती करते हो, आप उसे मानते हो, and then you move on. You live and you let the other person live.
फिर एक वैरायटी होती है लोगों की जो गलती करती है, उसे छुपाती है, उसे मानने के बजाय दूसरे पर कीचड़ उछालती है, बिकॉज आई थिंक दे फील दैट दैट्स एन ईजियर वे आउट। एंड इस बार ये कीचड़ एक माँ पर उछला है, उसकी ममता पर उछला है, एक लड़की के कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश की गई है, प्रोफेशनल करियर के बीच में आने की कोशिश की गई है। आज मैं अपनी सफाई ज़रूर पेश कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी दैट आई एम नॉट हियर टू क्लैरिफाई एनीथिंग, यस आई एम, आई वेरी मच एम, बट ये उन लोगों के लिए है जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने इतने सालों तक, स्पेशली जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है मेरा साथ दिया है, मेरे लिए प्रे किया है, एंड वो वेट कर रहे हैं टू हियर माई साइड ऑफ द स्टोरी। द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट आई डिड वॉज ऑन द 1st of June 2021। वो भी मुझे मजबूरी में करनी पड़ी थी, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ पब्लिक फिगर, और यूजुअली व्हेन यू आर फेमस एंड पीपल नो एवरीथिंग दैट हैपन्स इन योर लाइफ, तो जब FIR फाइल हुई, द मीडिया गॉट टू नो एंड द अदर पार्टी, Karan Mehra, started talking about it, and obviously I had to counter it. But that time I was in pain, I was in a state of shock, a lot was happening, पुलिस मेरे घर पे थी, बच्चे के क्लासेस चालू थे, सर पर चोट लगी है, इतना सारा प्रेशर है, suddenly it's like your life is falling apart. But today I feel more composed, I feel I have done a considerable amount of healing, और मैंने भी एक जर्नी तय की है इस पिछले 1-1.5 साल से, दैट मीन्स फ्रॉम 1st June 2021 until today. तो without further ado, I wanna counter a few allegations that have been put on me. इस एक बात के साथ कि अब तक मैं खामोश थी, but a lot of people took my silence for my weakness, and I want to let you know that my silence is definitely not my weakness. I'm busy providing for my child, I'm trying to earn my living, I'm managing a lot of things, my life has taken a U-turn, and that's why I'm busy doing that. And I think that I should definitely give that more priority than answering to every single YouTube allegation that comes my way. So without further ado, I'm going to come straight to the points. I'm not here to attack anybody. I'm only here to protect myself. And I will do whatever it takes to protect myself, because here we have a child involved. So the first allegation that Karan Mehra put on me, you ready to play it? We're going to show you some facts. जो कुछ भी मैं बोलूँगी, that is going to be fact based. That is not just my feeling. It's actually very factual. So I'm going to counter a few points. The first one being, Nisha, can you go in Hindi? I'm going to try. Certain things, okay, I'm going to try. So the first one is section 377. जो करण ने कहा कि मैंने 377 का सेक्शन उन पर, उनके पेरेंट्स पर और उनके भाई पर लगाया है. You want to show what clips they are so that people don't think that this is just me talking anything? FIR में जो कि 25 जून को फाइल की गई, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स को, मेरे ब्रदर को, सबको इम्प्लीकेट किया गया अंडर ऑल फॉल्स सेक्शन ऑफ कोर्स. एंड सबसे बड़ा जो उसमें वन ऑफ द IPC की धाराएं जो लगाई थी वो 377. शायद आपको पता होगा कि 377 क्या है, लेकिन जो दर्शक है शायद उनको ना पता हो तो दे कैन गो गूगल इट. बट वो है, उससे कहते हैं अननेचुरल सेक्स. और अननेचुरल सेक्स की जो ये धारा है उसने ना सिर्फ मेरे पे, मेरे पूरे लाइक माय पेरेंट्स, मम्मी पापा पे, मेरे भाई पे, हम सब पे लगाया है दैट वी ऑल हैड अननेचुरल सेक्स विद देम. सो मतलब इतनी बहुत अच्छा कर रहे हो जब एक औरत मुझ पे, मेरे पेरेंट्स पे, मेरे भाई पे एक IPC की धारा 377 लगा सकती है ऑफ अननेचुरल सेक्स बाय ऑल ऑफ अस विद हर. ये दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं मतलब. Okay, so we have a few video clips and all of you all must be well aware of this. But मैं चाहती थी कि I should show you this side by side. सबसे पहली बात तो ये मिस रिप्रेजेंट किया गया है और ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है कि आप खुले में आकर इसको एक मीडिया ट्रायल बना रहे हो जब आपका एक कोर्ट केस चालू है. तो अगर आपको कोई शिकायत है या आपका कोई काउंटर एलिगेशन है या आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम मौजूद है. यू डू नॉट हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म
where there is a media trial happening, because what is it going to give you? उससे आपको क्या मिलेगा? यही fame? I really don't understand the point of this whole media trial. और मैं ये इसलिए करना चाहती थी because I want to put an end to this media trial before it becomes a full-blown one, because there are a lot of other people now who are participating in this. So, अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि FIR के पहले पेज पर एक तरफ सेक्शंस या धाराएं लिखी होती हैं और दूसरी तरफ उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन पर ये धाराएं या सेक्शंस लगाई गई हैं, जिन्हें एक्यूज्ड भी कहते हैं. इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक धारा या हर एक सेक्शन उस हर एक एक्यूज्ड पर लगाई गई है. दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वे ऑफ लॉजिंग एन FIR. मैंने एक आम इंसान की तरह अपनी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जाकर दी और पुलिस को उस कंप्लेन के बिना पर जो धाराएं सही लगी उन्होंने लगाई. दिस इज़ नॉट मेड बाय मी. दिस सिस्टम इज़ नॉट मेड बाय मी. एनी डिसेंट मैन वुड नॉट टॉक अबाउट दिस ओपनली. 377 का जो सेक्शन है उसे बहुत ही सेंसिटिव सेक्शन माना जाता है, जहाँ पर उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी एक बहुत ही डिग्निफाइड और प्राइवेट तरीके से होती है. आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी एक फ़ीमेल होता है और इट्स डन इन अ वेरी कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट एंड अ डिग्निफाइड मैनर. उसको इस तरह से मीडिया में आकर उछालना, क्योंकि ये 377 वाली बात मैंने तो आप लोगों को नहीं बोली थी, करण नहीं बोली थी. इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू. आफ्टर ऑल आई एम द मदर ऑफ हिज चाइल्ड. You've lived with me for 13 years. अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपको कोई चीज़ लड़नी है मुझसे, तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम है. एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि करण की जो लॉयर हैं वो एक औरत हैं, और ये होते हुए अच्छे से, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी लाइफ का पहला केस है, बट आई एम श्योर फॉर द लॉयर इट्स नॉट द फर्स्ट केस, राइट? आई एम श्योर शी इज़ अवेयर अबाउट दीज थिंग्स एंड शी इज़ स्टिल पार्टिसिपेटिंग एंड मेकिंग दीज यूट्यूब वीडियोज़ विथ हिम. इट्स अ कंप्लीट शेम. To conclude this point of 377, I would like to say कि अगर मैंने ये सेक्शन किया होता तो खुले आम में आकर मैं अपनी ही बात काउंटर नहीं करती, because that would be spoiling my case. This what I'm doing here today and telling you all is going to be recorded as proof and attached in court, and I want that to happen. 1. 2. I have also informed this to my marriage counselor at the family court कि करण मेहरा ये सब कर रहे हैं एंड ये रूमर्स मेरे बारे में फैला रहे हैं, और उन्हें प्लीज़ उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि वो ये करना रोकें. तीसरी बात, I have filed a complaint in the police station ever since he started making these videos. Fourth, the necessary documents along with proof like that has been attached in the court, and I'm taking a legal action against such a strong statement and such a strong allegation. That comes to the end of 377. Now, I just want to ask that are there any questions related to this section that anybody has? Because I'm really going to take very limited questions in. We don't have one-on-one, so everybody is requested to take whatever. So this 377 जो धारा लगाई गई है, ये आपकी तरफ से थी या फिर when you ये करण पर लगी है, ये उसके पेरेंट्स पर नहीं लगी है, ये उसके भाई पर नहीं लगी है. So is there any fact कि मतलब आपके साथ में उस तरीके की चीजें परफॉर्म हुई है इसलिए ये धारा लगाई गई है? Obviously Because करण ने इस चीज से साफ इनकार See, किया मैं है यहाँ पर कि- ये नहीं बोलने आई हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई हैव अटैच्ड इन द कोर्ट एंड व्हाट आर द फैक्ट्स सपोर्टिंग इट. मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने आई हूँ, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अ फैमिली ड्रामा. टुडे दिस इशू हैज़ बिकम वेरी वेरी सीरियस, क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हो, जहाँ पर आप खुलेआम एलिगेशंस लगा रहे हो. आपने लिटरली जुडिशियल सिस्टम की भी रिस्पेक्ट नहीं की है, और आप इसको अपने हाथों में लेकर अपनी मर्जी से इसको एक मीडिया ट्रायल का रूप दे रहे हो. दैट इज़ नॉट फेयर. ऑल आई एम सेइंग इज़ वॉट एवर करण हैज़ सेड इज़ रॉन्ग, बिकॉज हर जगह पर जाकर, हर चैनल में जाकर, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाकर उसने ये बात बार बार बोली है दैट मेरे पेरेंट्स पर, मेरे भाई पर ये धारा लगाई गई है. All I'm saying is that it is wrong what he's saying and what he's doing. तो ये जो कंप्लेन कॉपी आपने हमें दिखाई है, ये जो करण मेहरा पर जो कंप्लेन की है वो वाली कंप्लेन कॉपी है, राइट? उनके Correct. पेरेंट्स पर जो आपने कंप्लेन की है वो There is no parents may complain. Everything is documented into two, FIR 1 and FIR 2. FIR 1 was about the incident that happened on the 31st of May 2021, क्योंकि रात को हुआ था, तो वो फाइल करते करते there were a few hours और वो फर्स्ट को रजिस्टर हुई.
and then there is an FIR too जिसमें 377 included है. So from your side you are saying कि आपने उनके पेरेंट्स और उनके भाई पर कोई FIR Absolutely I am saying that. No, कोई FIR दर्ज नहीं की है, ये सेक्शन उन पर नहीं लगाया गया है. Okay? Anything else? In FIR 1 or in any of the videos that Karan has said, I have put a section 377 of unnatural sex on his parents and his brother is wrong. I am defying that accusation and I produced proof of that. जब आपने कोई complaint की ही नहीं तो आप उसका proof कैसे दिखाओगे? Because it's missing, it's not there, right? And ये सारी चीज़ें written गई हैं. So even, I mean, it's been said to my investigating officer. So जो चीज़ मैंने बोली ही नहीं उसका प्रूफ कैसे दिखाया जाएगा, right? So obviously the lawyer and Karan are not reading the FIR very carefully. You want to show that the first page of the FIR, man, on how the section is written? You've shown it, okay. I'm moving on to point number 2, where Karan and his lawyer both have said कि FIR 1 के बाद निशा का मेडिकल नहीं हुआ. ओके कि मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुआ. एक तरफ उसकी लॉयर बोल रही है अगर मेडिकल हुआ होता तो ये पता चल जाता कि उसके सर पे कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी है, ना कि दीवार पर मारने से. और दूसरी तरफ करण बोल रहे हैं कि मैंने अपना सर दीवार पर खुद मारा है. सो ऑब्वियसली फर्स्टली दे बोथ नीड टू बी ऑन द सेम पेज एंड डिसाइड व्हाट दे वांट टू से. नाउ यू वांट टू शो दैट? So it was all kind of very planned, you know, that सब लोग मिले हुए हैं साथ में और क्या करना चाह रहे हैं. तो इसे सर मारा, सर से खून निकलना शुरू हो गया. I was surprised. और जब ये कहा है कि करण ने मेरा सिर मारा है तो उसके बाद इमीडिएटली जब मेडिकल के लिए बुलाया गया है तो गवर्नमेंट मेडिकल मना कर दिया निशा जी द्वारा कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल नहीं कराओ. भैया आप उसी से कराते तो पता चलता दीवार से मारा है, MRI होती, CT स्कैन होती. कुछ फोटोग्राफ्स में जो बाद में कोर्ट में पेश की गई उसमें हमने देखा यहाँ पे कट था जो कि नाउ इस चीज़ की चार्जशीट फाइल हो चुकी है by the police in the court and there is an injury report. I had gone to do the medical. This is how the incidents took place. I dialed 100. This is the hospital का injury report जहाँ पर मैं गई थी. Now I dialed 100 when this incident happened. The police came home. We went to the police station. वहाँ से मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया. वहाँ पर जाकर मेरी जांच पड़ताल हुई. ये रिपोर्ट बनाई गई जो आपको दिखाया. उसके बाद जब स्टिचेस लेने की बारी आई तब मैंने बोला कि आई वुड प्रेफर टू टेक द स्टिचेस फ्रॉम माई प्लास्टिक सर्जन बिकॉज आई एम एन एक्टर एंड दिस इंजरी वॉज ऑन माई फेस एंड इट वॉज माई राइट टू रिफ्यूज़ इट. तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल नहीं हुआ और रिपोर्ट नहीं तैयार की गई. So this is also a wrong allegation. Then I came back to the police station and then my first FIR was filed. और अंबानी हॉस्पिटल में जो हुआ था, just show that, वहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी हुई है. That's it. So I have a skin problem which is called keloid. उसमें एक थिक ब्लैक ग्रोथ हो जाती है जहाँ पर भी आपको एक डीप वूंड लगता है. जब मेरा C-सेक्शन भी हुआ था तो आई गॉट दैट होल कीलॉइड इशू जहाँ पर मैंने स्टेरॉइडल शॉट्स लिए थे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से. दैट्स हाउ इट बिकेम ओके. सो आई वाज वरीड कि अब ये इतना डीप कट आया है तो आई होप दैट कीलॉइडल इशू या कीलॉइडल स्कार ना रह जाए. दैट्स व्हाई आई जस्ट डिनाइड द स्टिचिंग प्रोसीजर बट द मेडिकल वॉज डन, रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड. Any questions related to this? Yes, it was a proper surgery. Which date was the surgery? See the bill of the Ambani? I think the first this happened and 2 days. Yeah. Any questions pertaining to this medical? I'm coming to the third issue. करण मेहरा बोल रहे हैं कि निशा रावल उनके घर में रह रही है. Firstly, the house belongs to the both of us. The house is registered on Nisha Rawal Mehra
एंड करण मेहरा. सो वी बोथ आर को ओनर्स ऑफ द हाउस, और उस हाउस पर लोन है, दैट मेक्स अस को बोरोवर्स ऑफ द लोन ऑन द हाउस. यू वांट टू शो दैट परचेज एग्रीमेंट? Karan Mehra and Nisha Rawal Mehra. Of course, I have deleted all the details because I didn't want the address and everything to be seen. Okay. Now, why I'm still living in the house? करण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे ट्रोलर्स मेरे पेज पर आए और उन्होंने मुझे बोला निकल जा इस घर से, करण मेहरा के घर पे रह रही है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, आई एम स्टेबलाइजिंग माई सेल्फ. I have a child, I have responsibilities, I have liabilities. वो बच्चा उस घर में पैदा हुआ है, उसका स्कूल, उसके दोस्त, उसकी रूटीन उस घर में है. आप बस उठ के एक दिन जा नहीं सकते हो. It takes time to stabilize yourself. That is the reason. And another big reason is I am not doing anything illegal. वो घर moratorium पर है, which is a COVID relief provided by RBI. January 2023 तक, Jan 2023 तक, that house is on moratorium. Obviously, I'm going to leave the house before that. Want to show the moratorium allowance letter? Anybody who wants to see this separately, we can show it to you. But out there, we can only show it in a limited way. Now, एक तरफ करण मेहरा बोल रहे हैं मैं उनके घर में रह रही हूँ, एंड ये रास्ता उन्होंने तब अपनाया जब इसके पहले वो बैंक को लिख चुके थे कि वो इस घर को सरेंडर करना चाहते हैं और उनकी पोटेंशियल नहीं है टू पे द EMI, सो दे शुड टेक द EMI फ्रॉम मी और दे शुड throw me out of the house. So clearly he doesn't care about where I'm going to go or where I'm going to go with the son, the child who was not even 4 years old that time when this happened. जिसको ऑफ कोर्स बैंक ने डिनाई कर दिया बिकॉज हम दोनों ही को बोरोवर्स एंड को ओनर्स हैं, तो उसके लिए हम दोनों को अग्रीमेंट में होना चाहिए टू सरेंडर इट. यू वांट टू शो दैट लेटर दैट ही हैड रिटन टू IDBI टू द बैंक. Inability of Mr. Karan Mehra to continue the service of home loan. Okay, zoom out. अब इसके बाद उन्होंने लिखा है कि निशा ने जाकर बैंक में धमकी दी. मुझे बैंक से फ़ोन आया था कि करण wants to surrender the house. So obviously I went to the bank to meet the bank manager with my accountant and my team to understand exactly what the call was about or what the letter was about. And I also wanted my statement since inception ताकि मैं prepare कर सकूं कि exactly क्या outstanding है. ये सब मुझे नहीं पता था because finances करण देख रहे थे. जब मैं वहाँ पर गई, it seemed like the bank people had already made up their minds, जिसकी वजह से अगस्त 2021 में मैंने उनसे इंसेप्शन से स्टेटमेंट मांगा था और आज तक वो स्टेटमेंट मुझे नहीं मिला है. सो देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट हैपेंड इन द बैंक. वांट टू शो दैट व्हाट्सएप मैसेज. ग्रीन वाला ऑफ कोर्स मेरा है. काइंडली कैरी द एंटायर अकाउंट समरी स्टेटमेंट सिंस इंसेप्शन. और आज तक मुझे वो स्टेटमेंट नहीं मिला है, विच इज़ माई राइट बिकॉज आई एम द को ओनर एंड को बोरोवर ऑफ द हाउस. नाउ मेरे जो ब्रोकर्स हैं उनको करण मेहरा लीगल नोटिसेस भेज रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं. द फ्लैट वॉज अप फॉर सेल मच बिफोर मी एंड करण ब्रोक अप. दैट मीन्स मच बिफोर 1 जून 2021 मार्केट में ये न्यूज़ जा चुकी थी कि हम ये फ्लैट बेचना चाहते हैं. अगर मैं ये फ्लैट बेचती हूँ तो हम ये बैंक का लोन अदा कर पाएंगे, उससे हमारा सिबिल ख़राब नहीं होगा. अगर हमारा सिबिल ख़राब होता है तो बहुत साल लगते हैं आपके सिबिल के स्कोर को वापस न्यूट्रलाइज करने में. सिबिल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वी यूजुअली टेक लोन्स फॉर हाउसेज फॉर कार्स, राइट. और हम दोनों ही अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू कर रहे हैं. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो सिबिल ख़राब ना हो, एंड दैट्स वाई आई एम स्टिल ट्राइंग टू सेल द हाउस. और ये मैं इलीगली नहीं कर रही हूँ. इट्स नॉट लाइक मैं वो घर बेच दूंगी और वो सारे पैसे ले लूँगी बिकॉज द हाउस इज ऑन बोथ आवर नेम्स. सो देयर इज़ अ लीगल प्रोसीजर टू सेलिंग द हाउस. नाउ हाउस मॉरेटोरियम में है, मैंने आप लोगों को बताया जैन 2023 तक. फिर भी
करण मेहरा चाहते हैं कि मैं उस घर की EMI भरूं, which is about 4,10,000 into the last 14 months, which is he's written in the counter petition now, and he demands that 3 lakhs into 14 months I should pay to him as compensation for living in that house. ये सारी चीज़ें are just basically pressure tactics. They've got really nothing to do. That brings the house point to rest. Any questions on the house? Yes. जब आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ले रहे थे, ये तब सेलिंग वाली बात थी घर की, या उसके बाद जब ये आपकी FIR हुई थी तब हुआ था ये बहुत पहले से चल रहा है, मतलब आई थिंक मे बी अबाउट 6 months और टू अ ईयर और समथिंग, रफली टेंटेटिवली आई हैव दोज मैसेजेस जहाँ पर ब्रोकर्स को गए हैं, हमारे दोस्तों को भी गए हैं दैट वी आर ट्राइंग टू सेल द हाउस. तो ये काफ़ी पहले से चल रही है बात. दैट मीन्स आप लोग जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स करने वाले जब हम साथ में थे, Yes. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स के भी कई पहले से. यस, but I explained to you why I'm still interested in selling the house, because I don't want my Sibyl to go for a toss. I have nowhere to go. He has his parents' house, right? Now, any other questions pertaining to the house? So now you are trying to sell the house, right? I'm trying to sell the house because I have moratorium till Jan 2023. अगर उसके पहले घर बिक जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बिकता है तो मुझे तब तक वो घर वैसे भी खाली करना है. सो इसके जो पेपर्स है वो आपके और करण के पास, जी. दोनों के पास है, और इसमें करण आपने जैसे कहा कि आप दोनों का है ये, राइट? सो इसमें अभी फिलहाल लीगल वे में करण का कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट है? In selling the house? Zero. In fact, in my counseling sessions, I have been telling the counselor, ma'am, कि please इन्हें बोलिए कि मेरी मदद करें to sell the house so that our CIBIL doesn't get spoiled and we can settle the bank score. Otherwise क्या होगा, आप घर सरेंडर कर दोगे, बैंक वो ले लेगा, लेकिन आपका CIBIL ज़रूर खराब हो जाएगा. और by chance there is still an X amount that we owe the bank, then that's a problem too. अगर बैंक वो घर ऑक्शन में बेचता है और उसके बाद भी we owe something, they are not able to sell it at a circle price, then that is a problem, that's a liability. So somebody has to tell Karan, either the people that are surrounding him are wrong and not giving him the right suggestions, I don't know. Because मैंने कई बार कोशिश की है to have a conversation, to put this behind us, but सो आपने लीगल वे में करण को बताने की कोशिश की, या उनके फ्रेंड्स के थ्रू बताने की? see legal way क्या होता है, मतलब it's all in the court, right? पहली बार लीगल वे में भी किया जहाँ पर दोस्तों ने हमारी बात करने की कोशिश की और लॉयर्स के बीच में मेल भी एक्सचेंज हुआ है, हमारी मुलाकात नहीं होती है, राइट? वी डोंट कम फेस टू फेस. तो अभी रिसेंटली जब काउंसलिंग सेशन हुआ था, दैट इज़ द ओनली टाइम वी केम फेस टू फेस. 2 काउंसलिंग सेशंस हुए थे, उसमें भी मैंने ये बोलने की कोशिश की थी. देयर इज़ नो अदर वे टू डू इट. काउंसलिंग सेशन के अलावा आपने कॉल्स वगैरह किए हैं? मैंने उनको एक मेल किया था और एक बार एक व्हाट्सएप किया था. ओके, बट राइट नाउ जैसे आपने कहा कि आप खुद ये घर मैनेज कर रहे हो, जी. वगैरह जो भी है आप खुद ही लोन का देख रहे हो? नहीं, it's on moratorium, so I'm not paying the loan. I'm waiting to sell the house, right? Obviously, I can't pay 4,10,000 every month and continue to live in that house. But there are so many other responsibilities. इतना बड़ा घर चलाना, आपका स्टाफ, आपका बच्चा, हमारी लाइफ तो वही है ना, सिर्फ करण मेहरा इक्वेशन से बाहर हैं. बाकी तो सारी लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही हैं जो मैं पिछले 1-1.5 साल से कर ही रही हूँ अकेली. ये जब सेल होगा तो इसमें आपका और करण मेहरा का फिर इसमें कितना होगा? Like, are you ready to give divided? Of course, but we have a huge outstanding. मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ मिलेगा भी. अगर कुछ मिलता भी है, then of course it will be divided. All these things are spoken. It's not like it has to be in black and white. जब ये registration, आप लोगों को पता होगा how the registration process happens. Both the owners have to come to the table. There is a proper procedure to it, right? Nisha, you spoke about sending him a mail and a message. Yes. Was it just about the flat, the house, or was it about Sure, something else as well? It's about the child, and it was basically about our life, that let's put it behind and move on. I don't think it's attached here, man, but it's there with you. I have a screenshot of that mail and WhatsApp message. See, बीच में ये 2 काउंसलिंग सेशन से हमारी मुलाकात हुई. पहले हमारे दोस्तों के थ्रू बात हुई, लॉयर्स के थ्रू मेल एक्सचेंज हुआ, एक बार बीच में कॉप्स के थ्रू भी बात करने की कोशिश की गई, जहाँ पर वो घर आ गए थे अचानक से. मैं बताऊँगी इस बारे में. See, I'm going to read it out to you. Karan, since you're in Mumbai and you came to the Imperial Home on the 2nd, this was in November, with unknown people and broke all the norms of COVID precautions, even though I was under quarantine, I felt very insecure, especially for Kavish. The way he was being exposed to strangers and the way you were walking all over the house, and even though
even through the contained room. Your sudden appearance without me mentally being able to prepare Kavish that he would meet his father after 5 months also is shocking for the child's mental health. Since you never tried to contact me to even say a hello to him, I have been handling this situation and taking help professionally on how a child's mental state should be handled. And this kind of incident creates confusion in the child's head since you then disappeared from his life again. If you are not keen to resolve our differences and issues on humanitarian grounds in view of future of Kavish, please return all his funds so I could secure him step by step. For the sake of whatever time we have spent together, I request you to cooperate in resolving this issue of the housing loan at the earliest, as I am unable to take any more financial burden in this regard. Hope you will realize your mistake of entering the house, sending legal notice for surrendering house, etc., which is going to affect the life of little Kavish too. The rest I leave it to you. Thanks. Okay, now is there any more question regarding the house? Neha? I'm going to move on to the next question, which is next point of allegation, which is the car. मैंने आपने वो दिखाया कि उन्होंने मुझसे 3 lakhs per month और वो दिखाया अपने image. Now, addressing the issue of the car, we had 2 cars. One was the BMW and one was the Creta. Both were दोनों के loans clear हो चुके थे. उसके बाद top up loan लिया गया. Creta मेरे नाम पे थी, BMW करण के नाम पे थी. हमारी शादी 2012 में हुई. 2013 में करण ने BMW वाली कार मुझे गिफ्ट की थी. But of course he was driving it because I said you're more famous and you go to your sets, so you know it suits you and you take it. Anyway, that was the thing between the couple. Everybody in the world is allowed in that house. Please go and see कौन visit कर रहा है. इसकी BMW है, इसके नाम पे है. चला हो रही है every day. Is it not theft? It is theft. Without insurance. हम पुलिस को बता चुके हैं. कोई है. So I did not steal that car. That car was mine. Anyway. So, just show the thing about the repairs and insurance. तो हुआ ये था कि जो BMW थी उसका पिस्टन टूट गया था. तो वो गाड़ी BMW सर्विस सेंटर में थी 6 महीने के लिए. अब कोई भी गाड़ी जब एक जगह खड़ी रहती है तो क्या होता है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है. ये हम सबको पता है. जब ये इंसिडेंट हुआ 1 जून 2021 को, जब करण गए तो वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी हमारी पार्किंग में. उसके बाद मैंने वो शो ले लिया जी वाला और मैं उसके शूट के लिए नायगांव जाती थी. ऑब्वियसली मेरे पीछे से बच्चा है, उसकी मेडिकल इमरजेंसीज है, उसकी रूटीन है. तो वो बच्चे के लिए मैंने वो BMW कार फिक्स की, उसकी बैटरी फिक्स की, उसके इंटीरियर्स फिक्स किए, उसका इंश्योरेंस किया. एंड देन एट द सेम टाइम ही इज़ गोइंग टू द कॉप्स एंड सेइंग ये मेरी गाड़ी को तोड़ रही है और इसने मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दी. अभी उसने अपने नए पेटिशन में लिखा है. तो मैंने आप लोगों को बताया अबाउट द कार. वो कार करण मेहरा टो करवा चुके हैं बिकॉज वो लोन पर थी और करण ने उसके EMI देने बंद कर दिए बिकॉज वो कार यूज़ नहीं कर रहे थे. और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे पीछे से मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा, whether it was the house or whether it was the car. ठीक है, he hates me, but what about his son? Anyway, that's the issue of the car. In addition to this, in 2022, this year, in the month of January, I bought a new car. करण मेहरा चाहते हैं अपने काउंटर पेटिशन में कि मैं उनको वो कार दे दूँ. So now I have only one car, right? I have sold my Creta and I got this new car and the BMW is gone. And he wants this car, that the only car in which I drive when I go to shoot and I take Kavish out, he wants that. I don't know what he wants from me. He wants my home, he wants the car, he wants to throw me out, he wants the child on the road. It's just whatever. Any questions pertaining to the car? Just wanted to understand this कि आपने क्रेटा को क्यों सेल किया और क्योंकि क्रेटा 7 साल पुरानी थी और वो मुझे इश्यूज़ दे रही थी. दैट वाज ऑन माय नेम, इट वाज ऑन अ टॉप अप लोन. उसका लोन मुझे ही अदा करना था. तो मैंने वो कार बेची, बैंक के साथ सेटलमेंट किया, जो डिफरेंस मिला उसका डाउन पेमेंट फॉर माय न्यू कार दी और अब अपनी न्यू कार का EMI में पे करती हूँ. दैट्स द स्टोरी ऑफ द. जो न्यू कार खरीदी ये आपके केस के बाद हुआ? हाँ, Jan 2022 में खरीदी है. हमारा केस 1 जून 2021 को हुआ था, द फर्स्ट FIR. एंड करण ने जो टो करवाए थे कार, वो आपके केस से पहला हुआ था या वो केस? नहीं, वो केस के बाद हुआ था. जब करण गए थे तो BMW उसने टो करा दी, तो वो BMW खड़ी थी हमारी पार्किंग में बिकॉज इट वॉज नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन.
I just explained, right? उसका piston टूट गया था and it was at BMW, उसकी battery discharge हो गई, so the car was not working. Then I fixed the battery, I did the repairs, I did the insurance, and I brought it to a usable condition so that me and the child could use it. We need two cars, right? एक कार में मैं shoot पे जाती हूँ, दूसरी कार में there is a certain lifestyle that we have been following so far. I cannot just jerk the child into a different switch. मैं उसको धीरे धीरे I'm making him used to a new lifestyle. But obviously we have necessities and we have needs. तो बच्चे के यूज़ के लिए भी मुझे दूसरी कार चाहिए. खैर अब वो दोनों कार्स ख़त्म हो चुकी है, मेरे पास न्यू कार आई है, तो उनको वो भी चाहिए जिसका आपने दिखाया हो. एनी अदर क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द कार? करण ने लाइक बच्चे के लिए सोचा नहीं, मेरे लिए सोचा नहीं. क्या आपने कभी करण को बताया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है? बिकॉज करण को तो वन सेकेंड, लेट मी एड्रेस हर क्वेश्चन फर्स्ट. क्या बताया कि आपको प्रॉब्लम्स है कार्स के रिलेटेड? बिकॉज वो तो ऐसे ही आपके ऊपर एलिगेशंस नहीं लगाएंगे, राइट? देखिए, वो ऐसे ही लगाएंगे कि वो वैसे ही लगाएंगे, वो आपका ओपिनियन है. 1 2, जो भी मैंने बोला वो मैटर ऑफ फैक्ट है. दिस इज़ नॉट माई फीलिंग एंड अ विम ऑफ फैंटेसी. एवरीथिंग दैट आई एम शोइंग यू, आई एम शोइंग यू प्रूफ. करेक्ट? सो दिस इज़ नॉट वो ऐसे ही एलिगेशन लगा रहे हैं. नहीं, ये क्वेश्चन आपको उनको पूछना है. बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सबको बुला के कि देयर विल बी प्रूफ एंड एवरीथिंग, बट आई डिडंट सी एनी प्रूफ कमिंग अप. करेक्ट? और ये बात आपका क्वेश्चन कि ये बात उन्हें पता है कि नहीं पता है. वी वर अ फैमिली, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर डिवाइडेड, राइट, बिटवीन अ कपल. एक जन फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखता है, एक घर संभालता है, इट्स डिवाइडेड. जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्टीज़ हो, हमारे बीच में भी वो अंडरस्टैंडिंग थी. Where he was taking care of the financial aspect, the insurances, all those kind of responsibilities of the house. He is very well aware of this. और अगर आप अवेयर नहीं हो तो क्या आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए जानने की कि क्या हो रहा होगा, बच्चा कैसे जा रहा होगा? आपको पता है एक कार है, आपको पता है आई एम अ वर्किंग पेरेंट, राइट, आपको पता है बच्चे की भी नीड्स हैं, और फिर भी आप वो एक कार मांग रहे हो. ये तो बहुत बेसिक कॉमन सेंस है. एज अ फादर, एज अ पेरेंट, यू शुड नो दीज थिंग्स, राइट? What was your question? I was like कि जैसे आपने कहा कि he was not bothered about how you guys are going through, and हमने मीडिया में ये भी सुना है कि आप उनको मिलने ही नहीं देना चाहते हैं काबिल से.